A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have completed the chapter 10, that is measures of the dispersion. So in today's class we are going to start the chapter 11, that is correlation. Okay, so in this chapter we are going to study the meaning of the correlation. What is the meaning of correlation? Importance of the correlation, types of the correlation on the basis of direction of change, on the basis of degree of change, and on the basis of numbers of variables. Next topic that we are going to study is degree of correlation, perfect correlation, no correlation or the absence of the correlation, limited degree of correlation. Next topic is methods of the estimating the correlation. So what are the different methods whenever we are going to the estimate the correlation? So next is scatter diagram, so in which we will study the estimates of the correlation and the merit and demerit of the scatter diagram. Next topic is we are going to study is Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay, Karl Pearson coefficient of correlation. Next we will study the calculation of the Karl Pearson coefficient of correlation, actual mean method, direct method, shortcut method, and step deviation method. Okay, so in the Karl Pearson coefficient of correlation, we will study this method by the different measures of the calculating the Karl Pearson coefficient of correlation, that is actual mean, direct method, shortcut method, and the step deviation method. Next is merit and demerit of the coefficient of correlation. The next topic, that is Spearman rank correlation. Okay, so you know very well that due to COVID your syllabus has been reduced, so you no need to study the Spearman rank correlation. Okay, Spearman rank correlation, it is the deleted from your syllabus. Okay, so you don't need to study the Spearman rank correlation, calculation of rank correlation ये भी नहीं पढ़ना. नेक्स्ट मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द रैंक कोरिलेशन ये भी नहीं पढ़ना. नेक्स्ट क्या है? लिस्ट ऑफ द फार्मूलाज एंड द एब्रीविएशन विच इज़ यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द कोरिलेशन. ठीक है, ऐसे डिफरेंट जो भी फार्मूला हैं जब भी हम कोरिलेशन करेंगे और दी एब्रीविएशन जो यूज़ हुए हैं कोरिलेशन में वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो कोरिलेशन in the earlier chapter we studied univariate distribution where observation were given on a single variable. ठीक है, अभी तक इन द अर्लियर चैप्टर हमने क्या पढ़ा? यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में है. मतलब एक ही वेरिएबल हम लोग क्या पढ़ते थे, याद आ रहा है? बस एक एक्स वेरिएबल पढ़ते थे जिसमें उसके फ्रीक्वेंसी दिए होते थे. बट वी ऑब्टेन्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा हम लोग उसी के थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी ऑब्टेन कर ले रहे थे, लाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा. एंड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी पढ़ा हम लोग ने, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. नाउ सपोज वी हैव ऑब्जर्वेशन ऑन द टू वेरिएबल. अब क्या है? अब जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? टू वेरिएबल्स हो गए, लाइक एक्स एंड वाई फॉर दी सेवरल इंडिविजुअल. मतलब अब दो वेरिएबल हो गए. पहले आपके पास बस एक वेरिएबल होता था, दैट इज़ एक्स वेरिएबल. उसको ही हम लोग डिस्पर्जन एज वेल एज जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे तो उसी को ही हम लोग ने पढ़ लिया था. अब क्या है? आपके पास दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई. वी हैव अ बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको क्या बोलते हैं? बाई वेरिएट. पहले हम लोग ने पढ़ा यूनिवेरिएट, जिसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं वो सिंगल होते हैं. ये होता है आपका बाई वेरिएट, जिसमें जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन है या वेरिएबल्स हैं वो टू वेरिएबल्स होंगे. सो वी कैन स्टिल कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू. अभी भी हमें क्या है? सेंट्रल वैल्यू, जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है, एंड डिस्पर्जन सो ऑफ ईच वेरिएबल. हर एक वेरिएबल का हमें सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन दोनों ही कैलकुलेट करना है.
However, we would also like to know if there is any association between the values of two variables. अब हम ये भी जानना चाह रहे हैं, अब जो दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक्स वाई ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, क्या उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन भी है, कोई रिलेशन भी है? ठीक है, ओके। सो वी वुड लाइक टू नो, हम ये जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ डज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंज इफ़ द वैल्यू ऑफ द अदर इंक्रीजेज और द डिक्रीजेज बाय अ सर्टेन अमाउंट। कि कोई भी एक वेरिएबल कैसे चेंज होता है जब किसी और वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है कुछ भी सर्टेन अमाउंट से। जैसे हम लोग ने रिलेशन पढ़ा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, प्राइस और सप्लाई का, कि एक के चेंज होने पे दूसरा जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हो गए, एक वेरिएबल हो गया आपका प्राइस और दूसरा हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड और दी क्वांटिटी सप्लाइड। तो एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज़ कर रहा है, कितना डिक्रीज़ कर रहा है, कितने अमाउंट से, यही हम लोग वेरिएबल में पढ़ते हैं। सो इज़ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन और दी इन द सेम प्रपोर्शन। क्या जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जैसे अगर प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रही है, या प्राइस अगर 25% इंक्रीज़ करी है तो सप्लाई भी 25% ही इंक्रीज़ करी है। तो या तो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है या तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने के लिए हम क्या ले सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और चेंज इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनेट। और क्या है कि जो भी चेंज हो रहा है वो सेम प्रपोर्शन में भी हो रहा है या ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है तो सप्लाई में कम चेंज हो रहा है, या प्राइस में कम चेंज हो रहा है और सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है। एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्या ये जो वेरिएबल्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में भी चेंज होते हैं। सो इफ़ द चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल देन द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है कि दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो रहा है, तब हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, बोथ आर कोरिलेटेड। वो दोनों एक दूसरे से क्या हैं, कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों वेरिएबल क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सो वी विल स्टडी कोरिलेशन इन डिटेल इन दिस चैप्टर। हम लोग कोरिलेशन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, कोरिलेशन क्या पढ़ता है, रिलेशन बताता है टू वेरिएबल्स के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द सर्टेन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। सो एज द समर हीट राइजेज हिल स्टेशंस आर क्राउडेड विद मोर एंड मोर विजिटर। जैसे ही समर क्या होता है, समर इंक्रीज़ हो जाता है, समर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे जो वो होता है क्राउड, ज़्यादा जो भीड़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे विजिटर्स क्या है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। आइसक्रीम सेल्स बिकम मोर ब्रिस्क। आइसक्रीम सेल भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि समर में क्या है, लोग सारी ऐसे कोल्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ कोल्ड है, ठंडी है, उसको लोग ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। दस द टेम्परेचर इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ विजिटर्स। अब इसका क्या मतलब हो गया कि टेम्परेचर क्या है, किससे रिलेटेड है, विजिटर्स से। जैसे कि अब टेम्परेचर आपका समर में क्या है, ज़्यादा हो गया, तो विज़िटर की जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा हो गई। टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो विज़िटर कोई भी हिल स्टेशन पे है, विज़िटर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। एंड द सेल ऑफ आइसक्रीम ऑल्सो, कि अब हम समर में क्या होता है, अगर वेदर क्या है आपका, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या है कि आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, वही आपका विंटर का सीज़न हो गया, विंटर का वेदर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो भी डिमांड है आइसक्रीम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सिमिलरली एज द सप्लाई ऑफ द टोमेटो इंक्रीज इन योर लोकल मंडी। ठीक है, अगर क्या हो गया सप्लाई टोमेटोज़ की, आपके जो लोकल मंडी आपके बगल में जो शॉप है उसमें इसकी सप्लाई क्या हो गई है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ के अबंडेंट अमाउंट में हो गई, टोमेटो बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग तो उतने ही खरीदेंगे ना जितनी उनकी नीड होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ऐसा ड्यूरेबल गुड्स है कि वो साल 2 साल उसको रख लेंगे कि आगे बाद में खाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर सप्लाई टोमेटोज़ की इंक्रीज़ हो गई तो उसकी जब बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गया मार्केट में, तो लोगों को जितनी नीड है वो उतनी ही लेंगे, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, वो ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि उतनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। सो व्हेन द लोकल हार्वेस्ट स्टार्ट रीचिंग द मार्केट, जो लोकल हार्वेस्ट है, जो लोकल किसान है, वो मार्केट पे रीच कर रहे हैं, द प्राइस ऑफ द टोमेटोज ड्रॉप फ्रॉम दी प्रिंसली 40 पर केजी टू 4 पर केजी और एवन लेस। कि अब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई, मतलब अब हर सप्लायर क्या है, टोमेटोज़ ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो मार्केट में लेकर आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 40 केजी पर हम लोग को टोमेटोज़ मिल रहा था, 40 पर केजी, वो 4 पर केजी भी हो सकता है। सो द सप्लाई इज़ रिलेटेड टू प्राइस। अब सप्लाई किससे रिलेटेड हो गया, प्राइस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, सो कोरिलेशन एनालिसिस इज़ अ मीन्स फॉर एग्जामिनिंग द सच रिलेशन सिस्टमैटिकली। अब कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करता है, वो क्या एग्जामिन करता है कि ऐसे रिलेशन को सिस्टमैटिकली पढ़ा है। इसमें क्या रिलेशन हो गया, आपका प्राइस और सप्लाई का रिलेशन हो गया। इट डील्स विद द क्वेश्चंस, ये क्या करता है, किसी क्वेश्चंस के साथ डील करता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके क्या क्या हो गए। पहला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। अब क्या किसी दो वेरिएबल है आपके पास, उन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है। नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल चेंजेस डज द वैल्यू ऑफ द अदर ऑल्सो चेंज। अगर एक की, देखिए अब इस डायग्राम में ही देखिए, अगर एक की चेंज हो गई, एक की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस पे क्या बोलते हैं इसको, सीसॉ। अगर इसकी क्या है पोजीशन चेंज हो जाएगी तो दूसरे की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं। अब ये अगर नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये या ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो अदर ऑल्सो चेंज होगा। डू बोथ द वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि जो दोनों वेरिएबल हों वो सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखिए अभी दोनों जब एक साथ हैं तो एक ही डायरेक्शन में हो जा रहे हैं। अब ये दोनों, अगर कोई यहाँ पे एक होता तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते। इसलिए क्या कह रहा है कि कोई ऐसा, ये चांसेस हैं कि दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द रिलेशनशिप, कोई रिलेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 कोरिलेशन स्टडीज़, कोरिलेशन क्या करता है, कोरिलेशन स्टडीज़ एंड द मेजर्स ऑफ द डायरेक्शन। कोरिलेशन क्या देखता है कि डायरेक्शन का मेजर्स देखता है कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल। और कोई भी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी देखता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा और कितना इंटेंस रिलेशन है, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसी को कोरिलेशन देखता है। कोरिलेशन मीन्स कोवेरिएशन, नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन का मतलब है कोवेरिएशन है, कॉजेशन नहीं है। कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रिटेटेड इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कभी भी कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं देखता है कि सप्लाई क्यों बढ़ी, उसका प्राइस के साथ क्या इम्पैक्ट हुआ। ऐसे कोई भी रिलेशन कोरिलेशन नहीं देखता है कि उसकी कॉज के पीछे नहीं जाता है कि प्राइस क्यों बढ़ी होगी, सप्लाई क्यों कम हुई होगी, डिमांड क्यों बढ़ा होगा। तो ऐसे कॉज एंड उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, प्राइस कम होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस को कोरिलेशन डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, ओके। So correlation between two variables x and y simply means that when the value of the one variable is found to change in one direction, the value of other variable is found to change either in the same direction or in the opposite direction. ठीक है,
तो कोरिलेशन कोई भी दो वेरिएबल है x एंड y, उनके बीच में क्या देखता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज़ फाउंड टू बी चेंज। अगर एक वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो अदर वेरिएबल है वो क्या उसके सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या उसके रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे अगर प्राइस चेंज हो रही है तो सप्लाई उसके उसी के प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, या सप्लाई उसके ऑपोजिट डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो एक वेरिएबल में चेंज अगर होता है तो वो बेसिकली क्या देखता है कि जो अदर वेरिएबल है उसमें जो भी चेंजेस अकर्स हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, इधर इन द सेम डायरेक्शन और इन द opposite direction. Okay, for simplicity we assumed here that the correlation, if it is exist, is linear. हम लोग simplicity के लिए ये मान लेते हैं कि अगर correlation exist कर रहा है तो वो linear है. That means the relative movement of the two variable can be represented by drawing a straight line on a graph paper. कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टू वेरिएबल्स को ले रहे हैं उनको जब ग्राफ पेपर पे करते हैं तो लीनियर मतलब हम लोग क्या उसको करते हैं, एक सिंगल लाइन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लाइन बनी नहीं है, एक सिंगल लाइन में उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हाउएवर इट मे बी नॉन लीनियर ऑल्सो, ये क्या हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। मीन्स कि जो सिंगल लाइन में वो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बस लीनियर ही हो। सो वी विल स्टडी दिस रिलेशन इन सेक्शन 11.3। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे 11.3 सेक्शन में। So in the words of the Croxton, and the Cowden, so when the relationship is of a quantitative nature, कि जब कोई रिलेशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव नेचर में होता है, मतलब क्वांटिटी और नंबर्स में कोई भी रिलेशन होता है, the appropriate statistical tool for the discovering and measuring the relationship and the expressing it in a brief formula is known as correlation. उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक appropriate statistical tool लेते हैं जो क्या करता है, उनके बीच में वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को देखता है और उसको एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरिलेशन बोलते हैं। सो इन द वर्ड्स ऑफ द A.M. Tuttle, so correlation is an analysis of the covariation between two or more variables. ठीक है, correlation क्या एक analysis है जो क्या करता है, it shows the, it study the relation between the two or more variables. जो भी variables हैं, दो से ज़्यादा x, y, z, a, b, c, d, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो भी variables हैं उनके बीच में क्या relation है उसको study करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन। सो द स्टडी ऑफ कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो कोरिलेशन की स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टडी करना है बिटवीन दी वेरिएबल्स, सो ये क्या करता है, रिलेशनशिप एक मेजर करता है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन फैसिलिटेट मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या फैसिलिटेट करता है, मेजरमेंट को करता है जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। इन अदर वर्ड्स बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड। हमने अभी पढ़ा था ना यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। बाईवेरिएट में क्या होता है, हम लोग किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फैसिलिटेट रिग्रेशन। सो व्हेन देयर इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर कोई भी रिलेशन होता है टू वेरिएबल्स के बीच में, द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल कैन बी एस्टिमेटेड। एक वेरिएबल की वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ द अनदर वैल्यू। उससे क्या है कि अदर वेरिएबल की और अदर वैल्यू की जब वैल्यू क्या है हमें दी हुई होगी तो हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड सच वैल्यू। जैसे x और y यहाँ पे वेरिएबल दिया है, अगर हमें यहाँ पे y इक्वल टू दे रहा है a प्लस बी एक्स दे रहा है, अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर, x की नहीं पता है और y की दी हुई है तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें x दिया हुआ है y नहीं दिया हुआ है तो हम y की
वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम फिजिबल बिकॉज द ट्रेंड ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्टिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये यहाँ पे सुटेबल हो जाता है, बिकॉज अगर एक भी कोई भी चेंज हो रहा है एक वेरिएबल में, उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इन चेंज इन दी अदर वेरिएबल में भी चेंज होगा, विच कैन बी स्टडीड एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैन बी मेड। उसको जिसको हम स्टडी भी कर सकते हैं और उसके थ्रू इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़। सो कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, कोरिलेशन क्या करता है, इट हेल्प दी फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर हैं, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और द मोर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका है, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल का क्या है, एग्जिस्टेंस, एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन पॉलिसीज़ एंड इट हेल्प, ये हेल्प क्या करता है कि कोई भी नई पॉलिसीज़ हमको बनानी है, उसको फॉर्मुलेट करना है, या किसी से हमें उस पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना है, उस कंडीशन पे क्या है, ये कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन। ओके, सो कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन अंडर। ओके, कोरिलेशन क्या है, क्लासिफाइड होता है टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन इन विच ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, कि इसकी डिग्री क्या है चेंज होने की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री डायरेक्शन ऑफ चेंज, so it is the negative correlation and the positive correlation. On the basis of degree of change, it is linear correlation, non-linear correlation. On the basis of number of variable, it is simple correlation, partial correlation and the multiple correlation. So the types of correlation is divided into three: on the basis of direction of change, on the basis of degree of change, on the basis of number of variable. So on the basis of direction change, it is divided into two, negative or the positive. On the basis of degree of change, it is divided into two, linear and non-linear. And on the basis of number of variable, it is of three, simple, partial and the multiple. Okay, so we will study all these one by one. So first of all, we will go through the on the basis of direction of change, कि किस डायरेक्शन में ये चेंज होगा। तो ये कह रहा है कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव और निगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, क्लासिफाई होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। So the correlation is said to be positive when two variable move together in the same direction. ठीक है, कोरिलेशन पॉजिटिव तब होता है जब दो वेरिएबल होते हैं, टू वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हो। मतलब अगर एक इंक्रीज़ कर रहा हो तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा, एक डिक्रीज़ हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, सो कह रहा है द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव when two variable move together in the same direction, जब टुगेदर सेम डायरेक्शन में वो चेंज होगा। इन अदर वर्ड्स कोरिलेशन इज पॉजिटिव, कोरिलेशन पॉजिटिव है when one variable increases the others also increases, कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। when one variable decreases other also decreases, कि एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। इसमें क्या कह रहा है देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इनकम राइजेज़, इनकम जब राइज़ हो रही है तो कंजप्शन ऑल्सो राइजेस, कंजप्शन भी राइज होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब किसी भी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ होगी, मेरी 40,000 है, मेरी इनकम 80,000 होती है, तो मेरा कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, कि मैं पहले बहुत सारी कमोडिटी को परचेज़ नहीं कर पा रही थी, बट अब मेरा कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगा। जैसी इनकम मेरी फॉल हो गई, मेरी इनकम 40,000 से 20,000 हो गई, तो मेरा जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इनफ आई डोंट हैव enough amount to spend
on all these consumption good. So in that case, when the income fall, consumption will also falls. So when temperature rises, sale of ice cream also rises. ये हमने पढ़ा था ना कि जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो सेल है आइसक्रीम की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. और जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा तो जो सेल है आइसक्रीम का, इट विल ऑल्सो बी फॉल. तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यही है कि जब जो वेरिएबल्स हैं, वो जब टू वेरिएबल्स हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वो लोग वो दोनों ही क्या हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे. लेट देयर बी टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल हम ले रखे हैं, एक्स एंड वाई लिया है. व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन बोथ एक्स एंड वाई, एक्स देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करा है, 10, 12, 17, 22, 32. वहीं आपका वाई भी देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, 2, 3, 7, 14 और 18. यही होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, कि जो दोनों वेरिएबल हैं वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, वेदर बोथ आर इंक्रीजिंग और दी बोथ आर डिक्रीजिंग. या तो दोनों ही इंक्रीज़ करेंगे या तो दोनों ही डिक्रीज़ करेंगे. तो इस केस में क्या है, दोनों ही इंक्रीज़ कर रहे हैं. यहीं पे हम देख रहे हैं व्हेन देयर इज़ डिक्रीज़ इन बोथ एक्स एंड वाई, जब दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं. तो एक्स क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है 50, 40, 35, 20 और 5. देखिए कंटिन्यूसली एक्स डिक्रीज़ कर रहा है, वाई भी देखिए डिक्रीज़ कर रहा है, 20, 18, 15, 9 एंड 2. ये भी डिक्रीज़ कर रहा है, और ये इंक्रीज़ कर रहा है, और ये भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो जब भी दो वेरिएबल क्या है, वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, वो दोनों ही इंक्रीज़ कर रहे हैं या वो दोनों ही डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कह रहा है निगेटिव कोरिलेशन. So the correlation is said to be negative when two variable move together in the opposite direction. ठीक है, कोरिलेशन नेगेटिव तब होगा जब जो दो वेरिएबल हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. एक इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है, या एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ कर रहा है. सो इन अदर वर्ड्स कोरिलेशन इज़ नेगेटिव. कोरिलेशन नेगेटिव है व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज, जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है, अदर डिक्रीजेस, अदर वेरिएबल डिक्रीज़ कर रहा है. व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीजेस, अभी एक वेरिएबल क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो अदर इंक्रीजेस, अदर जो है वो वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए दे रहा है यहाँ पे, सॉरी, व्हेन द प्राइस ऑफ द एप्पल राइज, द डिमांड फॉर द एप्पल फॉल. कि जैसे ही एप्पल, कोई भी कमोडिटी ले लो, अगर उसकी प्राइस क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस ऑफ द एप्पल इंक्रीजेस, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. व्हेन द प्राइस ऑफ द एप्पल फॉल्स, जैसे ही प्राइस एप्पल की फॉल हो रही है, तो डिमांड फॉर द एप्पल विल बी इंक्रीजेस, डिमांड जो है एप्पल की वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी. व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा, देन द सेल ऑफ वुलन क्लॉथ्स फॉल. अब जैसे देखिए, अब समर का सीज़न है, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका 45, 50 है, तो जो भी वुलन क्लॉथ्स हैं, जो भी हम स्वेटर पहने हैं, जो भी वुलन क्लॉथ्स है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना. ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जैसे ही, और अभी हम यही बात करते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो सेल क्या है वुलन क्लॉथ्स की आपकी फॉल कर जाएगी. तो ये क्या शो कर रहा है, इट शोज़ द निगेटिव रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल के बीच में ये निगेटिव रिलेशन शो कर रहा है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. सो लेट देयर बी टू वेरिएबल्स, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेके चले हैं. व्हेन देयर इज़ इंक्रीज़ इन एक्स एंड डिक्रीज़ इन वाई, जब आपका एक्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डिमांड हम अप्लाई कर सकते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जब प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड फॉर द कमोडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, कि प्राइस जैसे ही हम पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं हम लोग, कि जैसे ही एक की क्या होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी, द डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो व्हेन देयर इज़ इंक्रीज़ इन एक्स, अगर एक्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वाई में डिक्रीज़ हो रहा है. देखिए कैसे,
यहाँ पे कह रहा है आपका कि x क्या है, x 10, ठीक है, 10, 20, 30, 50, 70, 10, 20, 30, 50, 70, 50, 70, देखिए x क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं अब y देखिए 10, 9, 7, 5, 2, जस्ट ऑपोजिट, एक इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है। ये हो गया आपका निगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन तो है, इनके बीच में रिलेशन तो है, बट रिलेशन कैसा है, वो निगेटिव है। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन देयर इज़ डिक्रीज़ इन x एंड इंक्रीज़ इन y, जब डिक्रीज़ हो रहा है x आपका डिक्रीज़ होगा और y आपका इंक्रीज़ होगा। तो x कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, 70, 68, 50, 42, 30, ये डिक्रीज़ हो रहा है। वहीं y देखिए आपका कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, 2, 6, 8, 16, 25। तो ये होता है आपका निगेटिव रिलेशन, जब भी आपके पास क्या है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं बट उनके बीच में क्या है, रिलेशन क्या है, वो निगेटिव हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो होता है आपका निगेटिव कोरिलेशन।